Hello, good morning students and welcome back on my YouTube channel Math Mentor. So today I am going to start the next MCQ, that is MCQ number 21. So in previous video lecture we completed up to 20 MCQs, MCQ number 1 to MCQ number 20. It means today we have to start MCQ number 21 of the topic limits. If you want to download this PDF of limits of MST CET, so kindly check the description. You will get the link, blue link of the PDF of limits. So touch that blue link. I will give the approval of that. You will get the PDF of limits of this MST CET, limits of function. So there are 90 MCQs. So this topic carries maximum 1 MCQ. So for 1 MCQ I am taking 90 MCQ. It's a more than sufficient study for the MST CET of limits. So let's start from the MCQ number 21. So read the MCQ number 21. If alpha and beta are the roots of the quadratic equation, so ax square plus bx plus c. So 21 alpha beta अगर रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, then we write this alpha into x minus alpha x minus beta, x minus alpha x minus beta. Then we have to find the limit of this. Limit x tends to 0, x tends to beta. So 1 minus cos. This quadratic equation is there. So we can write in, replace this alpha into x minus alpha x minus beta divided by x minus beta square. So we know the formula for this. 1 minus cos m theta divided by theta square. This is the limit m square by 2 if theta tends to 0. So this is a reference. So here ये जो थीटा है यह थीटा स्क्वायर है, बट यहाँ पर x माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर होना चाहिए था, तो मैंने डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाइड भी किया, राइट. सो लिमिट ऑफ दिस इज अल्फ़ा स्क्वायर बाय 2, अल्फ़ा स्क्वायर बाय 2 बिकॉज m स्क्वायर बाय 2 इन द शॉर्टकट इनटू, so it is a beta minus alpha whole square, beta minus alpha whole square. So this will be the answer, alpha square by 2. Beta minus alpha, alpha minus beta are to be same, so we can write alpha minus beta whole square. So this is the answer of MCQ number 21. Okay, थोड़ा different category के example है, but we must know this. If alpha and beta are the roots of this quadratic equation, then we can write this quadratic equation like this. Alpha into x minus alpha and x minus beta, alpha beta are the roots of that quadratic equation. Okay, now 22. Look at the MCQ number 22. Limit x tends to pi by 2, sec x minus tan x. sec को मैं 1 by cos करता हूँ और tan को मैं sin by cos करता हूँ. न्यूमरेटर becomes 1 minus sin x, डिनोमिनेटर becomes cos x. इसको रैशनलाइज करेंगे 1 plus sin x, 1 plus sin x से मल्टीप्लाइड. न्यूमरेटर becomes 1 minus sin x, 1 plus sin x, 1 minus sin square x, it becomes cos square x. cos square x divided by cos x into 1 plus sin x. 1 cos cancel. cos x divided by 1 plus sin x. So x tends to क्या है, pi by 2 है. cos pi by 2 0, sin pi by 2 1, 1 0 by 2, आंसर इज 0. सो 22 का आंसर 0, सो C बनना चाहिए. 21 का आंसर B है. ओके, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ दिस 2 MCQs 21 and 22. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. वी विल स्टार्ट नंबर 23. Now look at the MCQ number 23, 24. So MCQ number 23.
लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 cos x डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय 2, इट्स 0 by 0, नो डाउट, बिकॉज x टेंड्स टू पाई बाय 2 है, cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 इज़ 1 बट cos पाई बाय 2 इज़ 0. सो सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड करना है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x का डेरिवेटिव 1, पाई बाय 2 का 0, साइन पाई बाय 2 इज़ 1, आंसर इज़ -1. बहुत ही सिंपल, डी इज़ द ऑप्शन. ओके 24, ये तो 10 सेकंड से भी कम लगे. लिमिट x टेंड्स टू 1 साइन पाई x डिवाइडेड बाय x माइनस 1, साइन पाई की वैल्यू 0, नीचे भी 0, डेरिवेटिव साइन का cos पाई x इंटू पाई x का डेरिवेटिव 1. सो इट्स अ कंपोजिट फंक्शन, साइन पाई x का cos पाई x का इंटू पाई. सो x रिप्लेस करो x 1, cos पाई की वैल्यू -1 इंटू पाई इज माइनस पाई. चेक इट द आंसर इज C. सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ 23rd and 24th. सो आपको समझ में आ रहा होगा कितना सिंपल है. यहाँ पर मैंने यल हॉस्पिटल अप्लाई किया, ये भी एल से सॉल्व किया. ओके नाउ 25 and 26. देखो 25 में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 साइन x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x रेज टू n माइनस 1. एन इज नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर. सो ये x की जगह पर 1 रिप्लेस करो, साइन 0 0 1 माइनस 1 0, 1 रेज टू एनीथिंग इज 1, 1 रेज टू n इज आल्सो 1, इट्स 0 by 0. सो वी कैन अप्लाई यहाँ पे 0 by 0 यल हॉस्पिटल रूल, साइन का डेरिवेटिव cos x माइनस 1, x रेज टू n का n इंटू x रेज टू n माइनस 1, cos 0 1 n 1 रेज टू दिस इज 1. सो आंसर इज 1 by n. सो 1 by n आंसर है क्या? यस, सी ऑप्शन. नाउ 26. व्हाट इज 26? अगेन सेम टाइप. लिमिट x टेंड्स टू 1, लुक एट द एग्जांपल देयर, साइन ऑफ x रेज टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1. इट्स एब्सोल्युटली 0 by 0 अगेन. चेक इट, 1 माइनस 1 0, ये 1 क्यों, x टेंड्स टू 1 है तो 1 रेज टू n 1 ही होता है, 1 माइनस 1 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 1 माइनस 1 0. सो इट्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म. मेक इट डिटर्मिनेट बाय यूजिंग यल हॉस्पिटल. डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos रेज टू x रेज टू n माइनस 1, cos ऑफ x रेज टू n माइनस 1, इसका डेरिवेटिव n इंटू x रेज टू n माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, cos 0 1 n into 1. So answer is n. So this is answer. Option is what? A. देखो 23, 24, 25, 26 both 4 examples, all 4 examples solved by using what? Yale Hospital rule. So Yale Hospital rule is sometimes magic for limits. Okay, so we'll take now 27 and 28. So after completion of 26, now start 27. Look at the MCQ number 27. Read the example 27 and start. Limit x tends to 0. Tan x minus sin x upon x cube. If degree of denominator is greater than degree of numerator, that time try to avoid the Yale Hospital rule. मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा कि यूज़ ही मत करो, लेकिन अवॉइड करो Yale Hospital अप्लाई करने का, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर में क्यूब है तो डेफिनेटली हमें उसको 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर है तो वी हैव टू अप्लाई द Yale Hospital rule 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. यहाँ पर एक क्यूब है तो 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. So such time what if degree of denominator is greater than the degree of numerator, then try to avoid the Yale Hospital rule for such type of examples. So we can solve by regular sin by cos, sin x by cos x minus sin x divided by x cube. Cross multiply करो,
आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन एक्स कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद एक कॉस एक्स नीचे आता है, सो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय कॉस एक्स। एक्स क्यूब को एक्स इंटू एक्स स्क्वायर किया, लिमिट ऑफ दिस इज 1, लिमिट ऑफ दिस इज 1/2, cos 0 is 1, it's 1. So answer is 1/2. So 27 का आंसर 1/2 आना चाहिए, yes correct option B. Okay, now 28. Look at the MCQ number 28. देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, so tan raised to mx minus sin raised to mx डिवाइडेड बाय x रेज़ टू m प्लस 2। सो इसका एक शॉर्टकट है, इसका आंसर m/2 आता है। ये तो शॉर्टकट है। अगर एग्जाम्पल ऐसा है tan रेज़ टू 4x माइनस साइन रेज़ टू 4x डिवाइडेड बाय x रेज़ टू 6, सो इसका आंसर 4/2। tan रेज़ टू 8x माइनस साइन रेज़ टू 8x डिवाइडेड बाय x रेज़ टू 10, तो आंसर ऑफ दिस 8/2, it's a 4, it's a 2, शॉर्टकट इज m/2। सो 28 का आंसर कितना आना चाहिए? D। सो इसको भी ध्यान में रखो, ये शॉर्टकट है और रेगुलर मेथड से आपको इसको ट्राई नहीं कर सकते। सो इस सर्टन इसको लर्न आपको याद ही रखना है। ये 2 एग्जाम्पल है उसके, ये 2 पावर m n सेम और उसका 1 से 2 से ज़्यादा है, 4 6 8 8 यहाँ पर 10। ओके, so it's 8/2, 4/2, answer is what? m/2. So this is the 28. Now 29. So after completion of 29, look at the 29 30. So it's again different example, 29 and 30. Sin x, sin 2x, sin 3x, sin nx upon x raised to n है। सो पहले साइन एक्स अपॉन एक्स 1, साइन 2x अपॉन 2 1 3 4 5 अप टू n, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इट्स n फैक्टोरियल। साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x इंटू साइन 5x अप टू साइन nx, डिनोमिनेटर x रेज़ टू n। सो सबका x का कोएफिशिएंट उसका आंसर होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू अप टू n, एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज व्हाट? n फैक्टोरियल। So answer is what? 29 n factor. Now look at the MCQ number 30, which is also different example. Sin x, sin 2x, sin 3x, sin 4x up to sin nx divided by sin nx, नहीं sin 1x, sin 3x, साइन 5x से ऑड नंबर की सीरीज़ है, साइन n 2n माइनस 1 इंटू एक्स, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n डिवाइडेड बाय 1 + 3 + 5 + 7 अप टू 2n माइनस 1। So this is also AP, this is also AP. Sum of first n natural number is n into n plus 1/2, and sum of odd numbers, यहाँ पर AP का फॉर्मूला अप्लाई करो सम का, n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो डेफिनेटली विल गेट n स्क्वायर, बिकॉज AP है। फर्स्ट टर्म 1 है, डिफरेंस 2 है, सो यूज़ करो n स्क्वायर मिल जाएगा। ये n और ये n कैंसिल, व्हाट विल बी आंसर? n + 1/2n, n + 1/2n बी ऑप्शन। n फैक्टोरियल था पहले, सी ऑप्शन। ओके, so this is the completion of 29 and 30. Now 31 से स्टार्ट होता है एक्सपोनेंशियल, x टेंड्स टू 0 है, 1 माइनस एक्स रेज़ टू 1/x इज e टू द पावर -1। यहाँ पर जो भी नंबर रहेंगे वो आंसर रहेगा 1/e इज द आंसर। 31 का आंसर 1/d ऑप्शन। नाउ लुक एट द 32। 32 बहुत सिंपल है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + mx डिवाइडेड बाय 1 - mx
रेस टू 1 बाई एक्स, लिमिट ऑफ न्यूमरेटर ई रेस टू एम, लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर ई रेस टू माइनस एम, ई रेस टू 2m हो जाएगा, ई रेस टू 2m। सो आंसर कितना ये सी। 29, 30, 31, 32। 29, 30 इज डिफरेंट एग्जाम्पल, थोड़ा जजमेंट है वहाँ पर सीक्वेंस एंड सीरीज की भी कंसेप्ट है, या फैक्टरेशन भी, फैक्टोरियल नोटेशन जो भी हम इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, वो मल्टी कंसेप्ट एग्जाम्पल है, ये मल्टी कंसेप्ट एग्जाम्पल है। इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन की भी कंसेप्ट है, यहाँ पर सीक्वेंस एंड सीरीज की भी कंसेप्ट है, सिग्मा नोटेशन की भी कंसेप्ट है। ये तो बेसिक एग्जाम्पल है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेस टू माइनस 1, ई रेस टू एम, ई रेस टू माइनस एम, सो इट इज ई रेस टू 2m 1 बाई, गॉट इट। 29, 30, 31, 32। So okay, so we'll take now 33, 34. Now look at the example number MCQ number 33 and 34. So both are on the limits of exponential function. So this is 33 now. a plus x divided by a minus x raised to 1 by x, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, सो 1 प्लस x बाय a, 1 माइनस x बाय a रेस्ट टू 1 बाय x, लिमिट ऑफ न्यूमरेटर e रेस्ट टू 1 बाय a, लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर e रेस्ट टू माइनस 1 बाय a, e रेस्ट टू 2 बाय a, 1 प्लस 1 2 बाई ए। देखो यहाँ पर 2 बाई ए कहाँ पर ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। कोई भी लॉजिक नहीं, कोई जजमेंट नहीं, ये हॉस्पिटल नहीं, बेसिक एग्जाम्पल्स। नाउ 34, न्यूमरेटर 1 प्लस 3x, डिनोमिनेटर 1 माइनस 3x, 1 बाई x, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ न्यूमरेटर e क्यूब, लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर e रेस टू माइनस 3, आंसर e रेस टू 6, e रेस टू 6 मीन्स ऑप्शन क्या है, सी। इससे भी बहुत सिंपल एग्जांपल एनुअल सीईटी को आते हैं, बिकॉज ये 11th स्टैंडर्ड के एग्जांपल है, अब टॉपिक है और लिमिट्स इज बेसिक टॉपिक ऑफ कैलकुलस। सो इसमें ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट लेवल के एमसीक्यू तो नहीं आ सकता, और एक ही क्वेश्चन अगर उसको पूछना है, उनको पूछना है तो सिंपल लेवल का ही पूछेंगे, क्यों टफ लेवल का पूछेंगे। इंटीग्रेशन में स्कोप है, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन में स्कोप है, डिफरेंशियल इक्वेशन में स्कोप है। सो नो नीड टू आस्क द डिफिकल्ट लेवल एग्जाम्पल इन द टॉपिक लिमिट्स, ओके, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी आल्सो। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ 34। सो विल टेक 35। 35 में थोड़ा करेक्शन है। 35, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स रेस टू 1 बाय एक्स। यहाँ पर 1 हुआ है, उतना करेक्शन करो। 3 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स रेस टू 1 बाय एक्स। सो यहाँ पर 1 होना जरूरी है। 1 प्लस 2 बाय 3x, 1 माइनस एक्स बाय 3, 2x बाय 3 रेस टू 1 बाय एक्स। सो लिमिट ऑफ न्यूमरेटर e रेस टू 2 बाय 3, लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर e रेस टू माइनस 1 बाय 3। सो इट इज e रेस टू 3 बाय 3 मीन्स 1। सो आंसर इज E। सो देखो ये ऑप्शन कहाँ पर है, E ऑप्शन, ये आंसर, ओके। 33, 34 and 35 also completed. Now we'll see 36, 37 onwards. Now example number 36. ये देखो 36, सेम, लिमिट x टेंड्स टू 0, a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय c प्लस डी एक्स, a प्लस सी एक्स, a प्लस सी एक्स रेस टू व्हाट 1 बाय एक्स। सो a से डिवाइड करना पड़ेगा 1 प्लस बी बाय ए एक्स, 1 प्लस सी बाय ए एक्स, लिमिट ऑफ न्यूमरेटर e टू द पावर b बाय, लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर e टू द पावर c बाय।
सो ई टू द पावर बी माइनस सी बाई ए, ये ऊपर जाने बाद निगेटिव हो जाएगा पावर का साइन, बी माइनस सी बाई ए, सो ऑप्शन क्या है डी। सो दिस इज 36। नाउ 37 इज व्हाट लिमिट x टेंड्स टू 0 tan pi by 4 minus x raised to 1 by x. So tan pi by 4 minus x means 1 minus tan x divided by 1 plus tan x. So 1 by tan x से डिवाइड करेंगे, tan x से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर में मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय tan x. So this is as per requirement, इसका रेसिप्रोकल वहाँ होना जरूरी है, because as x tends to 0 tan x also tends to 0, as x tends to 0 sin x also tends to 0. यहाँ पर sin और tan दोनों ही चलते हैं, बाकी कोई भी नहीं चलेगा, either sin और cos, बट एग्जैक्ट इसका रेशो ऊपर होना चाहिए, राइट। सो न्यूमरेटर का लिमिट e टू द पावर -1, डिनोमिनेटर का e रेस टू 1, e टू द पावर -2 आंसर, e रेस टू -2 ऊपर, नहीं यहाँ पर प्लस है, सॉरी ये प्लस है तो फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा, करेक्शन, ऊपर माइनस ये ई स्क्वायर आंसर, सो यहाँ पर प्लस साइड था, सो ओके इट इज़ 37, आंसर इज ई स्क्वायर। बहुत सिंपल एग्जाम्पल, विल टेक नाउ 38, 39 एंड 40। So it's completion of 37. Now look at the example number 38 of limits. Limit x tends to 0. 38. Limit x tends to 0. Here is what? 1 minus 4x raised to 1 minus x upon x. So यहाँ पर हम क्या करेंगे? सेपरेट डिवाइड करेंगे पावर को, 1 by x minus 1, 1 by x by x is what? -1. So पावर स्प्लिट करेंगे, 1 minus 4x raised to 1 by x into 1 minus 4x raised to -1. So x tends to 0 है, so limit of this is what? e to the power -4. यहाँ 0 रखेंगे, 1 minus 0 is 1, 1 raised to anything is 1, it's 1. So e raised to -4 is the answer, D answer. सो दिस गिवन पार्ट इज जस्ट फॉर द कन्फ्यूजन, सॉलिड सेपरेट डिवाइड करो, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द 38। नाउ 39 क्या है? लिमिट, अब ये x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, सो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी का एक एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला है 1 plus x raised to 1 plus 1 by x, 1 plus 1 by x raised to x is e, which is very similar to x tends to 0. 1 plus x raised to 1 by x is equal to e. So ये x tends to 0 है, x tends to infinity है. x tends to infinity for exponential function is this, 1 plus 1 by x raised to x is e. Exactly reverse है. So what is the question number 39? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी का यन है, यहाँ पर करेक्शन है, यन होना चाहिए, यन x नहीं, बिकॉज एग्जाम्पल में x टर्म नहीं है, 1 plus 1 by n स्क्वायर रेस टू n है, ये 1 by n स्क्वायर, तो यहाँ पर भी n स्क्वायर होना चाहिए, n स्क्वायर से मल्टीप्लाइड n स्क्वायर से डिवाइड, n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड, इट्स व्हाट e, n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 upon infinity, so 1 by infinity is 0, 0 into e is 0. So 39 का आंसर 1 by ये इसके पावर में है, इसके पावर मल्टीप्लाई है, ये ऊपर है पावर में, सो e रेस टू 1 बाई इन्फिनिटी, सो e रेस टू 0, e रेस टू 0 इज व्हाट 1. सो ये जो टर्म है मल्टीप्लाइड बाई n डिवाइडेड बाई n, ये मैंने पावर में की है, सो एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ पर 1 बाई n स्क्वायर है, तो ऊपर भी n स्क्वायर होना चाहिए, बिकॉज ये फार्मूला है 1 बाई x रेस टू x, 1 बाई x स्क्वायर रेस टू x स्क्वायर, 1 बाई x क्यूब रेस टू x क्यूब.
1 बाई एन स्क्वायर रेस टू एन स्क्वायर। सो एन से मल्टीप्लाई किया, पावर में एन से डिवाइड किया, ये पावर में है, इट्स ई रेस टू 1 बाई एन, एन टेंस टू इन्फिनिटी, ई रेस टू 1 बाई इन्फिनिटी, ई रेस टू 0 1 बाई इन्फिनिटी इज 0, ई रेस टू 0 इज व्हाट 1। सो 39 का आंसर क्या है बी। ओके, नाउ 40 में क्या है, सेम टाइप का एग्जांपल, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, लुक एट दिस 1 प्लस एन स्क्वायर, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर माइनस 1 है और एस टू एन स्क्वायर। सो ये रिवर्स करो, ऊपर ये 1 प्लस एन स्क्वायर 1 माइनस एन स्क्वायर रेस टू एन स्क्वायर, रिवर्स किया बिकॉज एन इज एक्स टेंस टू एन टेंस, यहाँ पर एन होना चाहिए, सब तरफ एक्स हुआ है, न्यूमरेटर ई, डिनोमिनेटर ई रेस टू माइनस 1, आंसर व्हाट ई स्क्वायर। सो डी इज द ऑप्शन। ओके, 38, 39, 40 ओवर। So this is also sufficient for today's video lecture। 20 MCQs हुए from 21 to 40। So अब तक 40 MCQ है। पहला लेक्चर इम्पॉर्टेंट था, वहाँ पर मैंने पूरा सिनॉप्सिस एक्सप्लेन किया है। सेकंड में 20 MCQs, थर्ड में also 20 MCQs। ओके, so we'll start the next MCQ from 41 to onwards on the next video lecture। So stay tuned on this YouTube channel Math Mentor। So today I am going to stop here। Thank you very much।